Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. The last day we had discussed about the partnership, and on that day we had discussed that how the profit can be shared among the partners, that is equivalent to their investment. And today we will discuss about the profit sharing ratio on the admission or retirement of a new partner. When a new partner is admitted into an existing partnership, he is required to put an amount in the fund which is equivalent to proportionate amount of capital, which depends on the share of the profit to which he will be entitled. In some cases, he is also required to bring certain premium for the goodwill of the firm. यानी कि कई बार वो कुछ अमाउंट लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है, यानी कि अपनी फर्म को बेटर करने के लिए। और ये जो प्रीमियम होता है that is shared by the old partners in the ratio in which they contribute to the share in the profit of new partner, and this ratio is called the sacrificing ratio. ठीक है, प्रीमियम तो ओल्ड पार्टनर्स शेयर कर लेते हैं, लेकिन उसको जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर भी तो हमें देना ना न्यू पार्टनर को। और वो जो रेशियो जो सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, दैट रेशियो इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। If in case the share of profit sacrificed by each existing partner is not given, then it is assumed that they will contribute to the new partner's share of the profit in their old profit sharing ratio. And similarly, if one of the partners decide to retire from the partnership, he is entitled to undistributed profit of the previous year and the assets and liabilities of the firm. He is also entitled to the goodwill of the firm. This amount of goodwill is contributed by the remaining partners in the ratio, by which their profit will increase after exclusion of the retiring partner. यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर जो एक्सक्लूड करके बाकी जो उनका प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट विल बी increased to the remaining partners, and this ratio is called gaining ratio. If in case the share of profit gained by each existing partner is not given, then it is assumed that they will distribute the retiring partner's share among themselves in their old profit sharing ratio. Okay, and now we will discuss the examples. The first example number 4, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Y retires and his share is taken by X and Z in the ratio 2:1. Find the gaining ratio and hence profit sharing ratio. यानी कि 3 पार्टनर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को 5:3:2 रेशो में डिवाइड करेंगे, और जो वाई है वो रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, और बाकी जो शेयर होता है वो एक्स और जेड 2:1 रेशो में डिवाइड करते हैं, और उसकी हमें गेनिंग रेशो फाइंड करनी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एंड दिस, so first of all we have the old profit share ratio, that is 5:3:2, and sum of ratios 5 plus 3:2, that is equal to 10. Okay, this will be 10. And now we have the old share of x, y and z in the profit, यानी कि हमारे पास जो ओल्ड शेयर है प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड करेंगे, दैट इज 5/10, क्योंकि सम ऑफ रेशियोज हमारे पास 10 है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स
5/10, just that will be 5/10 and 3/10 and that is 2/10 respectively। यानी कि जो x है वो 5/10, y 3/10 एंड जो z है दैट इज 2/10 respectively। और जब y रिटायरमेंट ले लेता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है x और z के अंदर 2:1 है। ठीक है, तो एंड देयरफॉर अब गेन ऑफ x हमारे पास कितना होगा, यानी कि जो y की शेयर है, y का शेयर कितना है 3/10, तो गेन हमारे पास गेन ऑफ x कितना होगा 2/3, क्योंकि इसकी जो गेनिंग रेशियो में है, जो इसकी रिटायरमेंट के बाद रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, जो गेन ऑफ x रहेगा 2/3 ऑफ 3/10, क्योंकि जो 3/10 है वो y का शेयर था, दैट इज इक्वल टू 2/10, इट बिकम्स 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, 1/5 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब सेम इसी तरह से गेन ऑफ z, तो गेन ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, किसका 1/3 इंटू 3/10, दैट इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, 1/10 ऑफ प्रॉफिट एंड देयरफॉर द गेनिंग रेशियो क्या है 2:1, अगेन हमारे पास 1/5:1/10, दैट इज अगेन 2:1 and therefore the new share of x in the profit that is equal to 5/10, पहले उसका 5/10 था, प्लस अब कितना ऐड हो रहा है दैट इज 1/5, then that is 1/5 when y takes a retirements and then we have to take the LCM, it becomes 5 plus 2 that is equal to 7/10 and now the share of z becomes that is पहले हमारे पास था 2/10 z के लिए और जो न्यू रेशियो आई थी that is 1/10 that is equal to 3/10 and it means the new profit sharing that is 7/10 is to 3/10 and therefore this implies 7:3. That means the new profit sharing ratio is 7:3. This ratio, okay, we will get. Yes, now we will discuss the next example. A, B and C are partners in a business sharing profit and losses in the ratio 2:3:4. A took a retirement from the partnership and after the difference in the income of B from the profit of rupees 45,000 before and after the retirement of A. ठीक है, हमें B की इनकम का डिफरेंस फाइंड करना है, कितने प्रॉफिट से 45,000 प्रॉफिट से और इसके A की रिटायरमेंट से पहले और बाद। ओके, एंड नाउ वी हैव गिवन द टोटल प्रॉफिट 45,000। ओके, और जो हमारे पास प्रॉफिट रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दैट इज 2:3:4 एंड सम ऑफ रेशियो बिकम्स 9 and now we have the share of A in profit। A का शेयर कितना था, यानी कि A का हमारे पास है 2/9 multiplied by 45,000 that is equal to ₹10,000। ठीक है, अब इसका जो प्रॉफिट है 10,000 प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे B एंड C में। ठीक है, इन द रेशियो इन देयर ओल्ड शेयर। ठीक है, एंड नाउ आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ A, this profit 10,000 will be divided among B and C in the old share in the profit and now gain of B का कितना गेन होगा, that means 3/9 of 10,000, 3/9 क्योंकि जो B का शेयर था वो हमारे पास था 3
ठीक है। और टोटल सम ऑफ रेशियोज है हमारे पास 9, तो 3/9 इंटू 10,000, 3/9 इंटू 10,000, दैट मीन्स 3/9 इंटू 10,000. When we have to simplify this, it becomes 10,000 by 3, and therefore that is equal to 3333.33. Okay, yes. Now I hope you understand this. It is the difference of B before and after the retirement. Okay, and now the next example. A and B are partners, sharing profit and losses in the ratio 3:2. 3:2. C is admitted 1/4 of the share in the profit. A and B decided to share equally in future. Find the sacrificing ratio and new profit sharing ratio. तो इसमें जो हमारे पास A और B पार्टनर्स है उनकी रेशियो है 3:2. ठीक है, और 3:2 उनकी ओल्ड रेशियो है. इट मीन्स A's ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट. ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? सम ऑफ रेशियो हमारे पास कितनी है? 3+2, दैट मीन्स 5, एंड देयरफॉर ओल्ड शेयर प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज 3/5, और बी का ओल्ड शेयर प्रॉफिट दैट इज 2/5. ओके, यस. एंड नाउ अब ये जो टोटल शेयर है, टोटल शेयर हम 1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि C एडमिटेड 1/4 ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट. C ने एडमिट किया कि उसको जो शेयर का 1/4 मिलेगा, इसलिए हमने जो टोटल सपोज किया वो 1 हमने सपोज कर लिया. ठीक है, और C को 1/4 मिल रहा है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट दैट मीन्स 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4. अब ये जो 3/4 है इसको हमें A और B में इक्वली डिवाइड करना है. तो इट मीन्स A's न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो न्यू शेयर हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वली डिवाइड करना है. दैट मीन्स 1/2 ऑफ 3/4. तो इट मीन्स 1/3 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू 3/8. एंड सिमिलरली द प्रॉफिट, न्यू शेयर ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, अब B के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा? अब B के लिए हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 3/8 दैट इज इक्वल टू 3/8. ठीक है, और ये जो 3:2 है, ठीक है, दिस वन इज द न्यू प्रॉफिट शेयर. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज देयर. That is 3:3:2. And now we have to find the A sacrifice. A sacrifice that is equal to old share of profit minus new share of profit. Old share कितना था इसका? 3/5, और न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सम ऑफ रेशियोज तो हमारे पास है, न्यू शेयर जो है दैट इज 3/8. ओके, तो 3/5 माइनस 3/8 दैट इज इक्वल टू 9/40. ठीक है, और सिमिलरली अगर हम B के लिए फाइंड करें तो B का सेक्रीफाइसिंग क्या होगा? B का हमारे पास जो ओल्ड शेयर था वो हमारे पास था 2/5. ठीक है, और 2/5 माइनस B के लिए 2/5 माइनस 3/8, and therefore that is equal to 1/40. ठीक है, it means now we have the sacrificing ratio. तो sacrificing ratio हमारे पास क्या हो जाएगी? 9/40 is to 1/40, and that means we get 9:1. It means the sacrificing ratio is 9:1. Yes, and now we have the another example. A and B are partners sharing profit and losses equally.
they admit C as a partner. The new profit sharing is 6:5:4 between A and B, C respectively. C pays rupees 80,000 as a premium for goodwill. And how will it be shared between A and B? ठीक है, ए और बी में कितना शेयर होगा उसका, कैसे इसको डिवाइड करेंगे। इनिशियली हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है इक्वली डिसाइड करते हैं। दे विल प्रॉफिट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि इनिशियली हमारे पास 1/2 ऑफ द प्रॉफिट्स एंटर करते हैं। और जब सी एंटर करता है तो इसकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमारे पास हो जाती है 6:5:4। इट मीन सम ऑफ रेशियो दैट इज 15। एंड आफ्टर सीज इंक्लूजन, अब सी एंटर कर गया तो ए को कितना बनेगा, दैट इज 6/15 और बी के लिए 5/15 ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एंटेल किया। अब ए का जो हमारे पास सेक्रीफाइस था, ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ए का पहले क्या था 1/2, ठीक है, और इसको दे दिया 6/15 इंटिल्ट कर दिया, तो 1/2 minus 6/15 and after this we get that is equal to 1/10। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 15 माइनस ये हो जाएगा ना हमारे पास 15 माइनस 12 3/30 दैट मीन्स वी गेट 1/10। ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट। और जो बी ने सेक्रीफाइस किया, दैट इज 1/2 माइनस 5/15, क्योंकि बी की जो प्रॉफिट थी वो हमारे पास 5/15 इंटिल्ड किया। दैट मीन्स हियर वी हैव 30 इज द एलसीएम, देन इट बिकम्स 15 minus 6 and therefore that is equal to, after calculating this we get 1/6 of the profit in favor of C। ठीक है, A ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और B ने सेक्रीफाइस किया 1/6 in the favor of C। यानी कि जो प्रीमियम पेड है, सी जो प्रीमियम लेके आया है वो ए और बी डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ए और बी डिवाइड करेंगे इन द रेशियो इन विच दे सेक्रीफाइस्ड, जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमारे पास जो रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगी 1/10 is to 1/6, 1/10 is to 1/6, the ratio becomes 3:5। ठीक है, एंड नाउ एज प्रीमियम, ए का प्रीमियम कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ रेशियो हमारे पास हो जाएगी 3/10, तो इट बिकम्स 3/8, क्योंकि 3 + 5 8 हो जाएगा, तो 3/8 into 80,000 and therefore it becomes 30,000। ठीक है, और 20 शेयर ऑफ प्रीमियम कितना हो जाएगा, दैट इज 5/8 into 80,000, that is equal to we have 50,000। ओके, यानी कि जो प्रीमियम था वो 30,000 और 50,000 में शेयर करेंगे। ए का शेयर हो जाएगा 30,000, बी का 50,000। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।